Hello learners, welcome to my channel all about education. And if you have gone through my videos, you must have seen the video on laws and theories of learning. अधिगम के नियम व सिद्धांत का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्टरी रूप में कई सारी चीज़ें बताई थी कि कौन कौन सी थियोरीज़ हैं. इन थियोरीज़ में हमने बात करी थी, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की बात करें, तो वी टॉक्ड अबाउट एसोसिएशन थियोरीज ऑफ लर्निंग या एसोसिएटिव थियोरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम के सहचार्य सिद्धांत. एंड अनदर वन वॉज कॉग्निटिव फील्ड थियोरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत. सो वी टुक अप द वेरियस थियोरीज इन दैट क्लासिफिकेशन. And with respect to cognitive field theory, we had already talked about Kohler's theory, about Brunner's theory, about the Gestalt theory. But in this series, we are going to understand what is associative theory, or in other words, we can say stimulus response theory, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या सहचर्य सिद्धांत. So in this SR theory or associative theory, we'll understand about Thorndike's theory. But before that, let us understand who are those who are included or who gave this association theory. The first name which comes in our mind is Thorndike. Thorndike का संबंधवाद, उद्दीपन प्रतिक्रियावाद, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, that is Thorndike's stimulus response theory is also known as SR theory, connectionist theory, bond theory and trial and error theory. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये प्रश्न आता है, SR थ्योरी किसने दी थी, या थॉर्नडाइक की थ्योरी का क्या नाम है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी. सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन एग्जाम्स. Other psychologists in association theory are Pavlov, Skinner, Hull, Guthrie, etc. Pavlov ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, कंडीशनिंग थ्योरी दी थी उन्होंने. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिक कंडीशनिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी. फिर हल की हम क्रमानुसार व्यवहार या प्रबलन सिद्धांत के बारे में वीडियो में अपलोड करूंगी. तो इस तरह से कई सारी एसोसिएशन थियोरीज में आपके विभिन्न साइकोलॉजिस्ट आते हैं. नाउ वी मूव ऑन टू दी थॉर्नडाइक्स थ्योरी. थॉर्नडाइक ने क्या कहा था अपनी थ्योरी में, जैसे कि मैंने बताया कि इसको विभिन्न नामों से बताया जाता है. कनेक्शनिस्ट थ्योरी यानी कि संबंधवाद का सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी यानी कि सीखने का संबंध सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर यानी कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत. तो ये थ्योरी क्या कहती है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक उद्दीपक होता है जिसके प्रति वह एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करने को प्रेरित होता है. इस उद्दीपक व प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित होता है जिसे हम SR द्वारा व्यक्त करते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज अ पर्सन फेसेस अ स्टिमुलस, समथिंग इज देयर इन द situation, in the place. When a person faces this situation which may act as a stimulus, and then the person responds to that stimulus in that situation or to that problem, and how he responds, whether the response was successful or not, that gives rise to the stimulus response bonding. There is a bond developed between stimulus and response. This is what Thorndike's theory mentions. थॉर्नडाइक के अनुसार किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने का प्रयास अगर सफल नहीं होता तो वह फिर प्रयत्न करता है. जब प्रयास सही अनुक्रिया पे पहुंचता है तो उसे अपना लेता है और एक स्थायी SR संबंध बनता है. This is what I was telling you. If the response for this stimulus is perfect, it is successful, then SR bond is developed. And if it does not reach to that successful response, then the person tries again. So that, and the trial may be in any number, so that the person reaches to a correct response. The person reaches to a successful response, which the person will accept. As a result,
the learning will be made and the person will be able to strengthen the SR bond. So in this way, you must have understood what does the SR bond means. And one another thing which is very important, learners, that Thorndike was behaviorist. So this is a very important point. Other than SR bond, that Thorndike was behaviorist. So his experiments are based on डायरेक्ट बिहेवियर. वो व्यवहारवादी थे और प्रत्यक्ष व्यवहार पर उनके सारे प्रयोग केंद्रित थे. उन्होंने 3 विशेषताएं बताई कि मनुष्य व पशुओं में सीखने की प्रक्रिया लगभग समान होती है, जो प्रयत्न व भूल द्वारा की जाती है. कोई कार्य करने पर या तो सफलता मिलती है या असफलता मिलती है. Whenever a person does a job or he shows any action or any response, there may be error, there may be success, but if there is error, the person or the animal does the task again. तो it depend करता है कि सक्सेस मिला या नहीं मिला. कुछ सही न होने पर फिर से प्रयास करता है और ये क्रिया तब तक चलती है जब तक सफलता न मिले या हताश होकर छोड़ दिया जाए. So there are 2 possibilities. Either the person or animal will be successful, or the person or animal will try again and again till they are successful, or a stage may come when the person or animal will leave the trial because of frustration or depression or failure. So learning is gradual and systematic. क्रमबद्ध तरीके से होता है. जो भी सीखे गए कार्य होते हैं उनमें क्रमबद्धता होती है या होनी चाहिए. इससे भविष्य में उसके प्रयोग में बाधा नहीं आती. Since it is gradual, it is organized, it is systematic, you can use that concept, that learning you have done in your future situations, future problems or solving the conditions. So the learning is direct and without reasoning. यानी कि सीखने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष तथा बिना विवेचन के होती है. कोई भी कार्य सीखते समय पहला चरण उसको प्रत्यक्ष तौर पर ग्रहण करना होता है एंड उसके बाद उसको समझना होता है. गहनता से आत्मसात करना बाद में आता है. सो बेसिकली देयर आर 3 थिंग्स. यू ऑब्जर्व समथिंग डायरेक्टली एंड देन यू ट्राई टू एब्जॉर्ब इट. आत्मसात करते हैं बिना रीजनिंग के, बिना तर्क के. पहले अंदर उसको अपने अंदर आत्मसात करने की, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं. रीजनिंग तो बहुत बाद में आती है. Now we will see what is the experiment which was given by Thorndike. We will talk about this experiment. So as you can see, there is a box here. There is a cage. That is why it is written cat in a puzzle box or a cage box. So in this, Thorndike with the help of his experiment showed how a cat learns by trial and error. As you can see, there is a box known as puzzle box and there is a food hanging outside and the cat is very hungry. The cat does not know how to reach this fish, and to reach that fish, the cat starts jumping, does many trials so that the cat is successful in grabbing that fish. Thorndike ने लकड़ी का पिंजड़ा तैयार करवाया जिसमें एक भूखी बिल्ली को रखा. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दिस इज अ हंग्री कैट. भूखी बिल्ली को रखा और पिंजड़े के बाहर प्लेट में, या उन्होंने, कुछ लोग प्लेट में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हैंग किया था, लटका रखा था भोजन. ये आप देख सकते हैं मछली को. भूखी बिल्ली ने कूदना शुरू किया, उछलना प्रारंभ कर दिया और इस दौरान उसके पंजे से लीवर दब गया. ये इसका पंजा लगा अचानक से. एक ट्रायल ऐसा रहा जो सक्सेसफुल रहा और पिंजड़े का दरवाज़ा खुल गया. पिंजड़े का जब दरवाज़ा खुल गया तो ये मछली जो है वो नीचे आ गई, या प्लेट में अगर यहाँ पे रखी हुई अगर आपको कुछ जगहों पे मिल जाएगा तो वो मछली उसने ग्रैब करी, खा ली, अपनी भूख मिटाई, संतुष्टि पाई. वुडवर्थ ने कहा कि प्रयास एवं त्रुटि से किसी कार्य को करने के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिसमें कई गलत भी हो सकते हैं और बार बार दोहराने पर आखिरकार सफलता मिल भी जाती है. अगर सफलता नहीं मिलती तो फिर कई बार वो कार्य छोड़ दिया जाता है.
तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है जो थॉर्नडाइक ने करके दिखाया था। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो थॉर्नडाइक ने कोशिश की थी वो था एक भूल भुलैया का, मेज का। मेज एक्सपेरिमेंट की बात करी थी उन्होंने, जो रैट पे किया था। मेज क्या है? भूल भुलैया होती है जहां पर ऐसे भूल भुलैया बनी रहती है, कैट जाता है यहाँ बंद है, फिर दूसरे रास्ते से आता है, फिर यहाँ से खुला हुआ है, तो अगर रैट इधर से चला गया तो उसको बंद रास्ता मिल जाता है, फिर वो वापस आता है, फिर इधर से जाता है। तो इस तरह से उन्होंने भूल भुलैया दी थी, और रास्ते में कई सारे रास्तों में बिजली के झटके थे, और सही रास्ते के अंत में भोजन था। There was food at the end of the correct path. So the rat had to find that correct path. If the rat went on a wrong path, on the wrong way, the rat got electric shocks. So in this way, after many trials, the rat was able to reach the food and satiate its hunger. So प्रयत्न व भूल से चूहे को सही रास्ते का ज्ञान हो गया और इस तरह से फूड की ओर बढ़ा। तो ट्रायल एंड एरर पे बहुत ज्यादा फोकस था। लर्नर्स ऑलवेज रिमेंबर, थॉर्नडाइक एम्फसाइज्ड ऑन ट्रायल एंड एरर। प्रयत्न व भूल से, प्रयत्न व त्रुटि से सीखना होता है, अधिगम होता है। इसी पे गोपाल स्वामी ने मनुष्य पर मिरर ड्राइंग का प्रयोग किया। बीएड में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में मिरर ड्राइंग का प्रैक्टिकल आता है, उसमें यही है। लेफ्ट हैंड से कार्य करते हैं मिरर में इमेज देख के, और फिर राइट हैंड से करते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग दिखाने के लिए कि कई सारे ट्रायल के बाद कैसे व्यक्ति सही ड्राइंग कर पाता है, चित्रण कर पाता है। तो ये था सेकेंड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर क्या निष्कर्ष निकला? व्हाट आर द कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन दीज एक्सपेरिमेंट्स? तो बहुत सारे कंक्लूजन्स निकले। पहला तो ये था कि किसी भी प्रकार की लर्निंग के लिए वी नीड ऑब्जेक्टिव, वी नीड गोल। हमें उद्देश्य की आवश्यकता है, हमें लक्ष्य की आवश्यकता है, और लक्ष्य को पाने के लिए उसके पीछे मकसद होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, अंतर्नाद होना चाहिए, ड्राइव होनी चाहिए। जब हमारे अंदर वो मकसद होगा, एम होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वो हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है। इसके अलावा उद्दीपन या स्टिमुलस बहुत जरूरी है, आवश्यक है। ऐसी अनुक्रिया आवश्यक है जो उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो। ऐसी हमें रिस्पॉन्स दिखाना है, ऐसी हमें अनुक्रिया दिखानी है, ऐसा हमें समाधान ढूंढना है जिससे हम ऑब्जेक्टिव को प्राप्त कर सकें, लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सफल अनुक्रिया अधिगमकर्ता द्वारा ग्रहण की जाती है। अगर आपका रिस्पॉन्स करेक्ट है, यू आर सक्सेसफुल विद योर रिस्पॉन्स, इट इज राइट, देन व्हाट हैपेंस? द लर्नर will move on to get more about that knowledge. The learner will try to grasp that knowledge and that will be his or her stable learning. उद्देश्य की प्राप्ति पर उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य बंद बनने पर मनुष्य का स्नायु मंडल सहायता करता है। स्नायु मंडल यानी कि नर्वस सिस्टम हेल्प्स इन दिस डेवलपमेंट ऑफ एसआर बॉन्ड। तो जो दो मेन एलिमेंट होते हैं, टू मेन एलिमेंट्स फॉर लर्निंग आर स्टिमुलस एंड मोटिवेशन। लर्निंग तभी होगा, रिस्पॉन्स तभी होगा, एसआर बॉन्ड तभी बनेगा व्हेन देयर इज स्टिमुलस एंड देयर इज मोटिव एंड मोटिवेशन। सो उसके आधार पर थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए, मेन समूह दिए नियम के, टू कैटेगरीज of laws which were primary laws and secondary laws. The primary laws were law of readiness, law of exercise, law of effect, and secondary laws were law of multiple response, law of mental set, law of partial activity, law of similarity, law of associative shifting. तो पहले बात करें प्राइमरी लॉज की, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो तत्परता का नियम क्या कहता है? तत्परता का नियम कहता है कि किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहना। जब भी टीचर क्लास में जाती है तो पहले बच्चों को तैयार करना पड़ता है, जो भी टीचर पढ़ाने जा रही है उसको ग्रहण करने के लिए। So unless and until the learner is ready, unless and until the student is ready, you cannot impart the new knowledge. तो ये बहुत जरूरी है, परंतु उसे रुचि और कार्य नहीं दिया अथवा रुचि नहीं है और कार्य सौंप दिया गया तो व्यक्ति में असंतोष जन्म लेता है। अगर आपने तैयार नहीं किया बच्चे को तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो कार्य करने को
उत्साहित नहीं होगा. द चाइल्ड विल नॉट बी एनकरेज्ड, द चाइल्ड विल नॉट डेवलप इंटरेस्ट टू डू द वर्क और एक्सेप्ट दैट नॉलेज. तो नेक्स्ट आता है, जब रेडी हो गया चाइल्ड, लॉ ऑफ एक्सरसाइज. इसका अर्थ है कि बार बार किसी कार्य को दोहराने पर वो याद हो जाता है, और अगर अभ्यास न किया जाए तो उसे भूल भी जाता है, जिसको लॉ ऑफ फॉरगेटफुलनेस भी कहते हैं. इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस, इफ यू डू नॉट एक्सरसाइज एनीथिंग विच यू हैव लर्नड, जैसे कि आप टेबल याद करते हैं मैथमेटिक्स में, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते, फॉर्मूला है, सूत्र हैं, अगर आप उनको याद नहीं करते तो आप भूल जाते हैं. दैट इज फॉरगेटफुलनेस. और उसके बाद आप तुरंत उठा लेते हैं, फिर से याद करना शुरू करते हैं, तो जल्दी आपको स्मरण भी हो जाता है, याद आ जाता है. सो एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी. आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है, जिससे कि SR बॉन्ड प्रगाढ़ हो सके, स्ट्रांग हो सके, उसको स्ट्रेंथन रखे. इसीलिए लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज दिया गया, यानी कि उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम. जितना आप उपयोग करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो आप उतना बेहतर याद कर पाएंगे. और अनुपयोग मतलब जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे. कुछ समय तक किसी परिस्थिति और अनुक्रिया के बीच अगर पुनरावृत्ति नहीं होती है तो वह बंध जो है, वह संयोग क्षीण पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है. वैसे मैं यहाँ पे लर्नर्स आपको बताना चाहूंगी कि इस नियम की काफी हद तक आलोचना हुई, इसको क्रिटिसाइज किया गया, बहुत हद तक इसको क्रिटिसाइज किया गया. बाद में जब इसका इवैल्यूएशन हुआ, इसको क्रिटिसाइज किया गया, और उसके बाद इसके नियम को बदलकर लॉ ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस आया. इसकी जगह पर लॉ ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस, मतलब नियंत्रित अभ्यास का नियम, कंट्रोल्ड प्रैक्टिस. इसका मतलब क्या हुआ कि आप लगातार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हद तक आप जानते हैं कि कंटेंट बढ़ता रहता है, विषय वस्तु बढ़ती रहती है, तो थोड़ा सा कम हो जाता है एक्सरसाइज. इसलिए इसका नाम रखा गया नियंत्रित अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ कंट्रोल्ड प्रैक्टिस का प्रतिपादन किया गया. एंड लास्ट कम्स लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम. इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं. लॉ ऑफ रिजल्ट, लॉ ऑफ कंक्लूजन, इसे संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं. सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन लॉ भी कहते हैं. तो ध्यान रखें कि लॉ ऑफ इफेक्ट का थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है. इसका क्या अर्थ होता है, जिस कार्य को करके अच्छा व सुखद अनुभव हो उसे हम बार बार करते हैं. यानी कि जो भी हम रेडी हो गए, हमने अभ्यास किया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, अभ्यास करने के बाद भी आप यू कैन फेस बोर्डम, यू कैन फेस डिसइंटरेस्ट, आपके अंदर अरुचि पैदा हो सकती है, आपका मन ना लगे, आप बोर होने लगे. तो अगर आपको सुखद अनुभव नहीं हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, तो आप क्या करेंगे, आप उस कार्य को छोड़ देंगे, आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, आप दोहराएंगे नहीं. तो ये बहुत जरूरी है कि संतोष असंतोष का नियम इसीलिए कहा गया है, सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन लॉ. और ये देखने को मिलता है कि अगर आप स्कूलों में देखने को मिलता है कि अगर आपको पुरस्कार दिया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए, देन यू स्टार्ट डूइंग दैट वर्क अगेन एंड अगेन. और अगर आपको उसको रिवॉर्ड ना मिले, अगर आपको उसमें कुछ कोई इनाम ना मिले, तो आप उस कार्य को छोड़ देते हैं. तो आशा है आपको ये लॉ समझ में आए होंगे. उसके बाद थोड़ा सा अगर हम बात करें सेकेंडरी लॉज की, या जो अधिगम के गौण ये नियम है, इसकी अगर हम बात करें तो बहु अनुक्रिया का नियम का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या या प्रॉब्लम आती है, या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर उसको कई सारे रिस्पॉन्स दिखाने पड़ते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स. और ये तब तक होती है जब तक उसको सही रिस्पॉन्स ना समझ में आ जाए. तो इसलिए एंड दिस इज बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर. तो बहुत सारे रिस्पॉन्स के बाद करेक्ट रिस्पॉन्स चूज किया जाता है. सेकेंड वन इज लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड और डिस्पोजिशन. इस कार्य को करने के लिए व्यक्ति के अंदर एक सही मानसिकता होनी चाहिए, एक सही अभिवृत्ति होनी चाहिए. अगर ये स्थिति नहीं है तो व्यक्ति
वह कार्य नहीं करता है और उस कार्य से दूर भागता है. अगर if your mental state is not proper, you will run away from that task, you will run away from that problem. तो ये मनोवृत्ति पे है. फिर आंशिक क्रिया का नियम, पार्शियल एक्टिविटी. कई बार व्यक्ति कार्य करता है फिर छोड़ देता है, उसको कतराता है या आधा अधूरा काम करता है, मन से नहीं करता है. कई बार जटिल कार्य को सरल किया जाए अर्थात छोटे छोटे भागों में किया जाए तो कर लेते हैं बच्चे, अदरवाइज एकदम से. अक्सर आपने ये मैथमेटिक्स में देखा होगा लर्नर्स, व्हाट हैपेंस इफ द प्रॉब्लम इज टू लार्ज एंड कॉम्प्लिकेटेड, देन व्हाट हैपेंस, द चाइल्ड लीव्स दैट प्रॉब्लम. The child does not attempt that problem. But if that problem is broken down into smaller sections, then what happens? The child is able to solve one or two sections. Maybe the child will leave the third section. But at least the child is trying first and second section. तो ये बहुत जरूरी है कि हम थोड़ा सा आंशिक रूप में प्रेजेंट करें. फिर अगला है सादृश्य समानता का नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन. जब व्यक्ति को नया ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे वो आत्मसात करता है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है और उसको अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है. तो उससे क्या होता है, लर्निंग स्टेबल हो जाती है, लर्निंग परमानेंट हो जाता है. सो इट इज वेरी नेसेसरी द चाइल्ड इज एबल टू एसोसिएट इट एंड असिमिलेट इट. सो साचार्यता कर सकता है और सादृश्य कर सकता है. लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, सादृश्य का मतलब होता है जब बच्चा जो है किसी के साथ उसकी समानता स्टैब्लिश कर पाए और उसको लर्न कर पाए. जैसे कि रोटी दाल, दाल चावल, रात दिन. तो इस तरह से आप ऑपोजिट्स या पर्यायवाची सिनोनिम्स वगैरह बच्चों को याद करा सकते हैं. सो आपको ये प्राइमरी और सेकेंडरी नियम समझ में आ गए होंगे. इसी के आधार पर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बताए थे थॉर्नडाइक ने, यानी कि सिद्धांत के शिक्षा में क्या निहितार्थ होते हैं, क्या इसके यूज होते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो चाइल्ड है वो अपनी मिस्टेक से, अपने एरर से सीखता है, भूल से सीखता है और प्रयत्नों से सुधार लाता है. He tries to improve through various trials and tries to make the SR bond as early as possible and as permanent as possible. उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, भरोसा डेवलप होता है, डर की कमी आती है, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना उस पे बल है इस पे, और समस्या समाधान की ओर बढ़ता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर मोटिवेट होता है. इस तरह का जो नियम है, ट्रायल एंड एरर की जो बात होती है, ये अक्सर देखा गया है कि गणित में, विज्ञान में, भाषा में काफ़ी यूजफुल है. तत्परता का नियम बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करता है, अच्छी आदतों का निर्माण करता है, मोटिवेट करता है, हर प्रकार की समस्या समाधान पे बल देने के कारण तत्पर रहता है कि समस्या आ जाए तो उसका सामना कर सकता है, और आदतों के निर्माण के कारण वो सही मार्ग की ओर अग्रसर होता है. मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है ट्रायल एंड एरर. सो ये कुछ थॉर्नडाइक ने कहते. आगे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, आगे बहुत आलोचना हुई इनके प्रयोगों पर, दंड और पुरस्कार पर उंगली उठाई गई, ट्रायल एंड एरर पर उंगली उठाई गई, और उनका कहना था, जो क्रिटिसिज्म करते थे, जो आलोचना करते थे, कि रचनात्मकता कहीं खत्म हो जाती है, रटने पर ज्यादा बल देते हैं. तो थॉर्नडाइक का रटने पर बल जो है वो लोगों को पसंद नहीं आया. उसमें रचनात्मकता खत्म होती है, उसका ह्रास होता है, अरुचि पैदा होती है, डीमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन भी डेवलप हो सकती है, व्यक्ति निराश हो सकता है, कुंठाग्रस्त हो सकता है. तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे. तो हर थियोरी के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, लेकिन आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट थॉर्नडाइक गेव इन हिज थियोरी ऑफ एसआर बॉन्ड थ्योरी एंड ट्रायल एंड एरर. अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.